with pronouns. वंदे हम श्रीगुरो शिवतां श्रीरूपां सागर जातां सावधूतां परिजना सहितां श्रीराधा कृष्णपादान् सहना ललिता श्रीराधां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले नाम नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी चारि शेषाचार्य वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव वैष्णव नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु सप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावन मीनाचन्यवासाय नित्याय परमात्मा नाम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण. We had done till 1/7/27. 1/7/27. 1/7/20. Hare Krishna, Prabhuji, I had a doubt. So, when do we clarify? Right now or in the end? Okay, you can start with the doubt. Okay. Prabhuji, just I was, contemplating कि जैसे, this Ashwathama and Arjuna, they both were the, like students of Dronacharya only. So how come Arjuna knew how to retract the Brahmastra, in last just few shlokas we did that. But Ashwathama didn't knew how to retract a Brahmastra. Okay. So actually for every art, some qualification is required. So although Satyama is himself the son of Dronacharya, but Dronacharya found him that he is not as much expert and he doesn't have such a level of concentration that he can understand the art of retracting the Brahmastra. Another reason which our acharyas gave is that one who is a brahmachari can get this art of retracting the Brahmastra. Now you may say, no, Arjuna is a grasta and Ashwathama rather was a brahmachari. So things were opposite. The reason is that Arjuna strictly followed Upkarvana brahmachari rules when he was a brahmachari in the ashram. And later on, he also followed the grasta ashram rules and regulations very clearly. But Ashwathama, although he was not married, when Duryodhan was on the deathbed, he told Ashwathama that because our entire dynasty is lost, you can beget children in my wife. And Ashwathama was silent, which was a sign that he agreed. So that made him disqualified for retracing the Brahmastra. So like in a class, or I would say from a general point of view, that there may be many students and for a teacher, his own son may be there. But then there may be some students in the class who are more qualified than his own son. So then teacher may teach everything. Other students may understand and son himself may not understand.
So that's why when it comes to art, teacher can teach everything, but then students should also be qualified to grasp that knowledge. So Arjuna was expert in that regard, in the sense that the day, in the day when that art was taught, night time he would perfect that art by practicing it. So that's why Arjuna is also called Godakesh. Godakesh means who doesn't sleep. And that is the reason Dronacharya said that you will be the most qualified archer in the entire universe. So that's why Dronacharya taught him that art. And Ashwatthama failed to understand that. Okay. Yes, Prabhuji, thank you for the insight. Hare Krishna. Prabhuji, I also have one question. Prabhuji, shlok number, the first shloka of the first chapter, उसमें जो last paragraph है, I am not able to understand it so well. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur specifically deals with the original pure sex psychology, devoid of all mundane inebriety. The whole material creation is moving under the principle of sex life. In modern civilization, sex life is the local focal point of all activities. वो जो पूरा है ना, why impersonalist, over stress. Okay. Yes, that part. तो इसमें रूपा जी बेसिकली क्या बता रहे हैं? Which shloka, Mataji, you said? 1.1. तो अगर आपको याद होगा जब हम पहला श्लोक कर रहे थे तो हमने 5 पॉइंट ऑफ व्यू से सेम श्लोक को देखा था विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री के हिसाब से। तो उसमें पहला श्लोक क्या था, वो एक उसमें से एक एक्सप्रेशन क्या था कि वो हम लोग माधुर रस की दृष्टि से भी देख सकते हैं, आदि रस कहते हैं। तो फिर प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं, कहते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये रसिक कमेंट्री भी दी है, इस पर श्लोक पे दी है। तो जिस तरह से इस संसार में, इसको संसार को मैथुनागर कहते हैं, उसी तरह से वो जो जगत है वहां पर वो सबसे ऊंची चीज, क्योंकि माधुर रस में कृष्ण की सेवा सबसे ज्यादा हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शांत रस में भगवान के लिए अप्रिसिएशन होता है। दास रस में सिर्फ अप्रिसिएशन नहीं होता है, अप्रिसिएशन इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति भगवान की सेवा करना चाहता है। फिर जब वो रस, जो सेवा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि व्यक्ति की इंटीमेसी भगवान से बहुत ज्यादा हो जाती है, व्यक्ति को लगता है अरे भगवान तो हमारे जैसे, तो वो दास रस क्या बन जाता है, साख रस बन जाता है। आप सोचते हैं भगवान हमारे जैसे, हमारे लिए इस तरह सेवा करते, लेकिन जब वो जो सेवा भाव और ज्यादा बढ़ जाता है तो भक्तों को क्या लगता है, भगवान हमारी सेवा पे डिपेंडेंट है। तो फिर वो क्या बन जाता है, वात्सल्य रस बनता है। बट इवन वात्सल्य रस में एक इंटीमेसी की बाउंड्री होती है, लेकिन जब इंटीमेसी की सारी बाउंड्री खत्म हो जाती है तब आता है माधुर रस, जहां पर भक्त लोग अपने शरीर द्वारा भी भगवान की सेवा करना चाहते हैं, एकदम पर्सनल, उसको माधुर रस कहते हैं। तो इस तरह से जो माधुर रस है, माधुर रस सबसे ऊंचा रस है आध्यात्मिक जगत। लेकिन जब वो भौतिक जगत में आ जाता है तब व्यक्ति इंटीमेसी चाहता है, बट सेवा भाव के कारण नहीं चाहता है, वो किसी कारण चाहता है, भोग की कारण चाहता है, तो वो संसार में वो लोएस्ट हो जाता है। बट वैसे भी ये जो सेवा का प्रिंसिपल है, जितना ज्यादा इवन भौतिक जगत में व्यक्ति अप्लाई करता है उतनी ज्यादा रिलेशनशिप्स स्ट्रांग हो जाती है। अगर आप वैदिक कल्चर में देखेंगे, वैदिक कल्चर में सेवा भाव ज्यादा था, हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी की और सेवा की बात करता था, इसलिए पहले के जमाने में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हुआ करती। आजकल क्योंकि वो सेवा भाव सिस्टमेटिकली एजुकेशन सिस्टम क्या करता है, मार देता है। मतलब बार बार बात इसकी आती है, आपका शोषण हो रहा है, शोषण नहीं होने दीजिए, और आपको किसी की सेवा नहीं करनी है, लोगों को आपके अंडर होना चाहिए। इतनी सारी चीजें इतनी ज्यादा भर दी जाती हैं कि व्यक्ति का सेवा भाव मर जाता है। और क्योंकि सेवा भाव मर जाता है, इसलिए जो भी 5 रस का प्रवर्धन है संसार में भी है, वो भी वीक हो जाता है। उस तरह से प्रभुपाद जी उसको बोल रहे हैं कि जो वहां पे हाईएस्ट है वो यहाँ पर लोएस्ट है।
यहाँ जो बेसिक प्रिंसिपल है वहां का था इसमें, ठीक है। लेकिन प्रभु जी इम्पर्सनलिस्ट क्यों लिखा है? क्यों? ये तो अप्लाई सबके लिए है, अब होता है ना? हाँ ये हाँ वैसे, हाँ सॉरी, हाँ बोलिए। अप्लाई अप्लाई सबके लिए होता है, लेकिन प्रभुपाद जी उसको वहां पर क्यों एम्फेसाइज कर रहे हैं, क्योंकि इम्पर्सनलिस्ट एक जगह तो बोलते हैं कि हमको इंद्र तृप्ति नहीं चाहिए, वो ना करते हैं, दूसरी तरफ वो भगवान भी बनना चाहते हैं। तो मैं उसको ज्यादा डिटेल नहीं बोलूंगा, लेकिन एक उसका सिर्फ मैं एक हिंट दे, एक व्यक्ति है बहुत फेमस है, और तो वो लोग भी कई बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, पर वो कहता है इस जन्म में पार्वती मेरी माँ है, अगले जन्म में वो मेरी पत्नी बने, दिस लाइफ शी इज माई मदर, नेक्स्ट लाइफ शी बिकम, तो वो भगवान बनना चाहता है। इसका मतलब वो सबसे ऊंचा एक्चुअली वो सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहता है, उसको प्रभुपाद जी कह रहे हैं, उसको प्रभुपाद जी कि वो लोग बोलते तो बहुत है इंद्र तृप्ति नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन उनकी इंद्र तृप्ति की जो लालसा है वो बहुत ज्यादा ऊंची है। तो वो लोग बोलते हैं कि हमको संसार का कोई भोग नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि हमको सबसे बड़ा भोग चाहिए, वो भगवान बनेंगे सबसे ज्यादा भोग करेंगे। तो सेवा वृत्ति का जस्ट वो उल्टा है। जैसे उनका जो सन्यासी लोग हैं, जनरली सन्यासी से मतलब उसको हेड ऑफ द सोसाइटी होना चाहिए, और उनके लिए सन्यासी का मतलब कौन है? वो कोई सेवा नहीं करेगा ना, अगर आप उसको बोले प्रसादम सर्विंग भी नहीं करेंगे, नहीं हम सन्यासी हैं, सबसे पहला भोग हमारे पास में आना चाहिए, हम डिटैच्ड हैं। लेकिन आप देखेंगे वैष्णव संप्रदाय में जो सन्यासी तो उल्टे होते हैं, वैष्णव संप्रदाय में सन्यासी लोग इवन प्रसादम सर्विंग करते हैं। भक्ति साधक सत्य को जब भी लगता था कि हमारा सन्यासी डिसाइपल थोड़ा प्राउड हो रहा है, उसको प्रसादम सर्विंग लगा दिया करते। कई तो हमारे सन्यासी ऐसे हैं, नगराधनाथ महाराज, कहीं भी वो जाते हैं, किसी घर में भी रुकते हैं, उनका एक प्रिंसिपल क्या है, जब आए हैं जितना घर साफ है उससे ज्यादा साफ होना चाहिए, पूरा घर सफाई करके खासकर टॉयलेट क्लीनिंग करके जाते हैं। अब कोई ट्रेडिशनल सन्यासी देख लेगा, मायावादी सन्यासी, उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो माना है वो प्रिंसिपल क्यों फॉलो कर रहे हैं? वो एक सेवा भाव है, तो भक्तों के अंदर सेवा भाव है। इसलिए प्रभुपाद ने इम्पर्सनलिस्ट लिखा है, वो सटल मेंटालिटी। जैसे रिसेंटली कोई तो पोस्ट आया था, वो कुछ भक्त लोग बेवल्डर थे, यहाँ से भी साथ कुछ भक्त लोगों ने पूछा था, अभी भी कुछ भक्त लोग मेरे को पूछते थे, अरे ये इतने बड़े सन्यासी हैं, आप उनके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते? तो बाकी टाइम वो राधे राधे कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, लेकिन वो भगवान बनना चाहते। तो जो आपके पूजा का स्वरूप है, मतलब जो पूजा का सब्जेक्ट है, आप उसका ही भोग करना चाहते हैं, दैट इज कंसिडर्ड ग्रेटेस्ट ऑफेंस। प्रभु जी वो बिविल्डरमेंट और ज्यादा बढ़ इसलिए जाता है कि हमारे ही बहुत ज्यादा सीनियर डिवोटीज जब उनके पास जाते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं, उनसे उनका आंसर सुनने के लिए व्याकुलता दिखाते हैं, तो फिर लगता है कि, तो जब फिर आपने तो क्लैरिफाई भी किया बहुत अच्छे से कि, तो वही मतलब बहुत बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग, क्योंकि वो लोग जा रहे हैं उनके पास, तो हम लोग ओपनली बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है वो लोग बोलेंगे, कह रहे हैं बड़े बड़े इस्कॉन के डिवोटीज जा रहे हैं, तो इसलिए आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि फिर क्या करना चाहिए। इसीलिए क्या है, देखिए मतलब कैसा रहता है कि इवन कोई बहुत सीनियर डिवोटी, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनके अंदर भगवान की क्वालिटीज, भगवान की क्वालिटीज इन द सेंस यू नो एवरीथिंग। वो तो परमात्मा नहीं है ना, उनको सबके हृदय में पता नहीं है कौन क्या फिलोसफी फॉलो कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसके हृदय में क्या है। इवन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो हमारे 6 गोस्वामी से एक हैं, वो रामदास विश्वास के चक्कर में फंस गए थे। जब वहां से वो जगन्नाथपुरी आ रहे थे, तो रामदास विश्वास करके एक व्यक्ति था जो हमेशा राम राम जप करता रहा, राम 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 राम। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उसने ऐसी सेवा की, उनको लगा ये हमसे उच्च कोटि का भक्त। लेकिन जब वो पूरी में आया, तो महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से बात की, उसकी तरफ देखा तक नहीं। तब उनको पता चला कि वो राम राम जप कर रहा है भगवान राम बनने के लिए।
तो जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी बिल्डर हो सकते हैं, तो हम लोग तो इवन हमारे जो सीनियर सन्यासी लोग हैं भगवान नहीं है ना, वो पता नहीं है कि किसके मन में क्या फिलॉसफी चल, वो भी गलती कर सकते। इसलिए जो एक बोलते हैं ना, पर्सनैलिटी कल्ट एक चीज होती है, तो दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग फिलोसफी। पर्सनैलिटी कल्ट मतलब ये जो बहुत महान है, ये जो बोल रहे हैं ये सब कुछ सही है, वैसा नहीं है। गुरु साधु शास्त्र, जो साधु या गुरु भगवान की वाणी को रिपीट कर रहा है वो ऑथेंटिक। और कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बिविल्डरमेंट आ सकता है, क्योंकि वो भगवान नहीं है। ये कई बार हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए हमने जनरल टेंडेंसी क्या देखी है, या तो हम किसी को इतना आसमान में चढ़ा देते हैं कि जैसे भाई इससे बढ़िया व्यक्ति कोई नहीं है, या फिर उसको ऐसी भत्सना उसकी करते हैं कि इससे बुरा कोई आदमी नहीं अगले पल। बट हर व्यक्ति इंसान है, तो कई बार प्योर फिलोसफी बोलते बोलते भी एक टाइम पे डेविएट हो जाता है। इस्कॉन दिल्ली का एक बहुत बड़ा टेम्पल है, जिस समय एक समय एक डिवोटी थे, वो नहीं ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। आज आज की अगर सोशल मीडिया समय होती तो शायद उनके करोड़ों फॉलोअर्स होते, वो इतने फेमस थे। लेकिन फिर वो राधा कुंड में जाके वो पूरा डेविएट हो गए, सारी कांग्रेस में चली गई। तो पहले डेविएट नहीं था, लेकिन डेविएट हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इसलिए गुरु साधु शास्त्र का जो चेक है वो हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। नहीं असान यतम यतमम किंचित अस्सम वृत्तावकर्षणम जहि अस्त्र तेज उन्नतम अस्त्रज्ञो ही अस्त्र तेजसा। इसका जो हिंदी वर्जन है तो पढ़ सकता है, चैप्टर 7 वर्स 20। सनातनी पद्मा माता जी आपके पास है? जी बाबू जी। जी बाबू, पढ़े क्या? आप पढ़िए, इसका अर्थ पढ़िए बस। हाँ, ठीक। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निस्तार कर सकता है, क्योंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, अथवा अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का समन करो। तो रूपाल बोलते हैं कि जो व्यक्ति इस साइंस में बहुत एक्सपर्ट थे, वो ब्रह्मास्त्र का भी क्या कर सकते थे, दमन कर सकते थे। तो अर्जुन भी सुपर एक्सपर्ट था, तो कृष्ण ने बोला कि आप क्या करिए, आप इस ब्रह्मास्त्र का दमन करिए। जो ब्रह्मास्त्र है ये अश्वत्थामा ने छोड़ा है। कि सारे भक्तों से अनुरोध है कि सब लोग कैमरा ऑन करिए, क्योंकि हमको मालूम है अगर कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो आपका ही मन आपको परेशान करेगा। श्रुतवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुना परवीरः स्पृष्ट्वापस्थं परिक्रम्य रामं रामाय संदते। पढ़िए इसका अर्थ। हम पढ़े प्रभु जी? हरे पढ़िए माता जी, पढ़िए। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, भगवान के यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके इस अस्त्र को प्रशामित करने के लिए उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हरे कृष्ण जी। तो जब कृष्ण से ऐसा आदेश प्राप्त हुआ अर्जुन को, तो अर्जुन ने क्या किया, पहले आचमन किया, क्योंकि ये अस्त्र जो है, ये अस्त्र शस्त्र आजकल के मॉडर्न अस्त्र शस्त्र जैसे नहीं है। तो ये मंत्रों के द्वारा चला जाता है। जैसे गायत्री मंत्र करने के लिए हम लोग आचमन करते हैं, इसी तरह उसने भी आचमन किया, भगवान की परिक्रमा की, और फिर अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। वो ब्रह्मास्त्र जो इस ब्रह्मास्त्र को क्या करेगा, रोकेगा, प्रतिरोध करेगा।
संहत्यान्योन्यम् उभयोस् तेजसी सर संवृते आवृत्त रोदसी खमचा ववृधाते अर्क वहनिवत। बढ़िया हरे इसका अर्थ। कृष्णा। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक बृहद चक्र ने समस्त बाह्य अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। हरे कृष्णा। धन्यवाद। जब दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं तो एक बड़ा सा आग का गोला बनता है, सारे ब्रह्मांड को संतप्त करने लगता है। तो प्रभुपाद बताते हैं, कहते हैं कि कैसे, जैसे आजकल के एटॉमिक बॉम्ब है वो बहुत अग्नि छोड़ते हैं, ब्रह्मास्त्र भी बहुत अग्नि छोड़ते हैं, पर ब्रह्मास्त्र आजकल के एटॉमिक बॉम्ब से श्रेष्ठ है। उसका कारण क्या है? ब्रह्मास्त्र पूरे ब्रह्मांड को भी नष्ट कर सकता है और आगे हम देखेंगे वो बिना माता को आहत किए माता के गर्भ को मार सकता है। दोनों के दोनों एक्सपर्टीज उसमें। तो छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज को नष्ट कर सकता है ब्रह्मास्त्र। इस तरह से ब्रह्मास्त्र को संतप्त करने लगा। तो पहले भी इस तरह के वेपन थे और हड़प्पा मोहनजोदारो के अगर आप रेमिनेंट्स देखेंगे, आजकल बहुत लोगों ने भी स्कूल्स में पढ़े हुए हैं, तो वहां पे सिम्टम बनते हैं कि उस समय भी एटॉमिक बॉम्ब जैसा कोई चीज थी जिसने उस सिविलाइजेशन पर हमला किया था, क्योंकि लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो रिस्पॉन्ड कर पाए ब्रह्मास्त्र ने सबको, ब्रह्मास्त्र बोलिए या फिर जो एटॉमिक बॉम्ब था उसने सबको नष्ट कर दिया। तो वो सिद्ध करता है कि इस तरह के जो वेपन्स वगैरह थे वो पहले भी थे, लेकिन बीच में वो विद्या कैसी हो गई, लुप्त हो गई। जैसे आज भी हम लोग देखेंगे बहुत सारी विद्याएं हैं जो आज से 100 साल पहले थी, आज लुप्त हो गई। जैसे मुझे याद है, मेरी नानी, वो सूर्य को देखकर वो समझ आती थी कि कितना टाइम हो रहा होगा अभी, तो उनको घड़ी की आवश्यकता नहीं थी। उसी तरह से गिनती की बात आती है तो वो सिर्फ क्लास 4 या 5 तक पढ़ाई की थी, और उनको 1.25, 1.75, 1.3, 1.4 सारे पहाड़ याद थे। तो आप अगर उनको बताएंगे कि हम इतने की चीज मिल रही थी, हम इतना लेके आए हैं, दूसरी की चीज इतना मिल रहा है, जब तक आप लिस्ट खत्म करेंगे वो आपको बता देंगे कितना पैसा खर्च। तो गणित बहुत तेज थी, लेकिन आज लोगों की बुद्धि थोड़ी कम हो गई है, तो कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है, कंप्यूटर यूज करना पड़ता है। दृष्ट्वास्त्रतेजस्तु तयो त्रिलोकान् प्रदहन् महत् दह्यमाना प्रजा सर्वाः सांवर्तक्यं वंशत। बड़ी इसका। हरे कृष्णा। उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सारे लोग जल भुन गए। सभी लोगों को उस संवर्तक अग्नि का स्मरण हो आया जो प्रलय के समय लगती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो प्रलय के समय क्या होता है? ये संवर्तक जो अग्नि है, संवर्तक बादल अग्नि भी होती है, तो अग्नि पहले सबको संतप्त करती है, संतप्त करके वो क्या करती है, सबको जला के राख कर देती है, और जो पानी होता है पानी बन जाता है बादल के रूप में, और उनको बोलते हैं संवर्तक बादल, जो कि गोवर्धन लीला में आए थे। और वो वो बारिश एक बार करते फिर से बोलिए, एक बार फिर से बोलिए। हैं। संवर्तन अग्नि जलती है जो कि सबको जला के राख कर देती है, और जितना भी पानी होता है पानी बन जाता है बादल, उनको बोलते हैं हम संवर्तक बादल बोलते हैं। और ये जो संवर्तक बादल हैं ये इंद्र ने भेजे थे गोवर्धन लीला के समय। तो ये क्या करते हैं, ये इतनी भयंकर बारिश करते हैं, जैसा कि उदाहरण आता है कि तो बूंदे नहीं गिर रही थी, ऐसा लग रहा था पूरे पिलर्स गिर रहा हूँ, खंबे गिर रहा हूँ पानी के। उसकी वजह से जो पूरा ब्रह्मांड है वो आधा भर जाता है पानी से। फिर उसके बाद सूर्य संतप्त करता है तो फिर से वो बादल बदल जाता है। इस तरह से अग्नि और पानी
जितना ज्यादा बारिश होती है फिर वाष्प बनती है, इतनी बार बनता है कि जितना भी ब्रह्मांड में सब कुछ है वो कैसा बन जाता है, वो पानी में बदल जाता है, खुल जाता है। आप देखेंगे किसी भी चीज को आप अगर ये जला दीजिए, पानी में घोल दीजिए, सब कुछ पानी ऐसे बन जाए, तो वैसा हो जाएगा। तो वो अग्नि की तरह अभी प्रतीत हो रहा था जब अर्जुन ने और अश्वत्थामा ने, ये जो ब्रह्मांड थे, सॉरी ब्रह्मास्त्र थे, दोनों आपस में टकरा थे। बोलिए सुमना माता। प्रभु ये कौन सा प्रलय यहाँ के, ये जो इस तरह का प्रलय होता है, ये कौन सा प्रलय में आता है? एक्चुअली ये होता दोनों प्रलय में है, जो ब्रह्मा जी के दिन के अंत में होता है और जीवन के अंत में। पर ब्रह्मा जी के दिन के अंत में जब होता है तो वो सिर्फ स्वर्ग लोक तक ही होता है, स्वर्ग लोक के ऊपर नहीं होता। और जब ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में होता है तो जो सारा चीजें नष्ट होती हैं वो पूरे ब्रह्मांड में। दिन के अंत में सिर्फ स्वर्ग लोक तक और जीवन के अंत में पूरे ब्रह्मांड में। प्रभु जो जो जैसे सुनते हैं कि जन्म और महरलोक के लोग सतलोक में चले जाते हैं, तो ये क्या ये दिन के अंत वाला होता है? हाँ, दिन के अंत वाला होता है। तो इसको आंशिक, तीन तरह के प्रलय होते हैं ना, तो एक आंशिक और एक महाप्रलय और एक कौन सा मेरे को याद नहीं। हाँ, तो ये आंशिक वाला है, पूर्ण वो नहीं है, महाप्रलय नहीं है। तो महाप्रलय में तो जो ब्रह्मांड है वो महाविष्णु के अंदर जा करके वो जो पॉज बोलते हैं हम लोग, पॉज हो जाते हैं, वैसा वो ब्रह्मा जी के आयु कंप्लीट होने पे होता है क्या वो वाला? हाँ जी, हाँ जी, वो ब्रह्मा जी का आयु कंप्लीट। प्रजोपद्रवम् आलक्ष्य लोक व्यतिकरम शतम मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनो द्वयम्। पढ़िए इसका। इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। हरे कृष्ण जी। धन्यवाद। तो आजकल के जो, अगर आपने एटम बम छोड़ दिया, मतलब छोड़ दिया, आप वापस नहीं ले सकते। ओ, ये नहीं हो सकता आप गलती से बटन दब गया। लेकिन अर्जुन क्या करता है, दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस ले लेता है अपनी शक्ति के द्वारा। तो इस तरह से वो काउंटर भी कर देता है। आजकल ही बहुत सारे वेपन्स है, वो क्या करते हैं कि दूसरे वेपन्स को आसमान में ही नष्ट करते हैं, लेकिन वापस लेना संभव नहीं। अर्जुन क्या करता है, उनको वापस भी लेते। आसाद्य तरसा दारुणम गौतमी सुतम पवन्तामर्षताम राक्षः पशुम रसनया यथा। हरे पढ़िए कृष्ण इसका। प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण में पढ़ रही हूँ। तांबे के दो लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें आंखें किए अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक से गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। हरे कृष्ण। धन्यवाद। उसके बाद अर्जुन जो बहुत गुस्से में था, वो गौतमी के पुत्र, गौतमी कहा गया है कृपी को, क्योंकि कृपी जो है वो गौतम ऋषि के इसमें लीनेज में पैदा हुई। तो कृपा और कृपी ये दोनों के दोनों जुड़ा भाई बहन है। और कृपी का की शादी विवाह हुआ था द्रोणाचार्य के साथ। तो जो कृपी है वो गौतम ऋषि के उसमें आती है, लीनेज में। इसलिए उनको यहाँ पे अश्वत्थामा को क्या बोला गया है, गौतमी के पुत्र। गौतमी के पुत्र को उन्होंने क्या किया, बंदी बना लिया, और बंदी बना के एक जानवर की तरह उसको पकड़ के लेके आए। शिविराय निरीसंतम रज्वा पद्वा रिपुंबलात् राहार्जुनम प्रकुपितो भगवान अम्बुजे क्षणः। पढ़िए इसमें।
अश्वत्थामा को बांध लेने के अश्वत्थामा बाद अर्जुन ने उससे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। इसमें आप तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य बड़ा सुंदर है। ओके प्रभु। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। यहाँ पर अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों को क्रुद्ध बताया गया है, लेकिन अर्जुन की आंखें लाल तांबे के तप्त गोलों के समान थी, जबकि भगवान श्री कृष्ण की आंखें कमलवत थी। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन तथा भगवान के क्रुद्ध रूप एक जैसे नहीं हैं। भगवान दिव्य हैं और किसी भी अवस्था में पूर्ण हैं। उनका क्रोध भौतिक प्रकृति के गुणों के वशीभूत बद्ध जीवों के क्रोध जैसा नहीं है। क्योंकि वे पूर्ण हैं, अतएव उनका क्रोध तथा उनकी प्रसन्नता एक समान है। उनका क्रोध प्रकृति के 3 गुणों में प्रकट नहीं होता। यह अपने भक्तों के हित के लिए उनके मन के झुकाव का प्रतीक मात्र होता है, क्योंकि वह उनकी दिव्य प्रकृति हैं। अतएव उनके क्रुद्ध होने पर भी क्रोध का पात्र धन्य हो जाता है। वे सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो इस तरह से कृष्ण और अर्जुन दोनों को ही यहाँ क्रोध में दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक जीव में और भगवान में स्पष्ट अंतर समझ में आता है कि भगवान हमेशा ही कैसे रहते हैं, मायाधीश रहते हैं, माया उनके कंट्रोल में रहती है। तो इसीलिए कृष्ण को क्रोध तो आ रहा था, लेकिन क्रोध उनके नियंत्रण में था, ना कि उनको क्रोधित कर रहा था, उनको नियंत्रित कर रहा था। लेकिन अर्जुन को क्रोध ने इतना नियंत्रित किया हुआ था कि उसकी आंखें एकदम लाल थी। तो हालांकि एक हिसाब से देखा जाए तो भौतिक दृष्टि से कोई भी क्रोधित होता। अश्वत्थामा ने मात्र द्रौपदी के 5 पुत्रों को नहीं मारा था, द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न और जितनी भी उनकी सेना वगैरह थी, सबको सोते समय मारा था, निद्रा के समय मारा था। तो इसलिए उसका क्रोध बहुत स्वाभाविक था। लेकिन कृष्ण क्योंकि सारे भौतिक जंजालों से ऊपर हैं, तो उनको भी क्रोध आ रहा था, लेकिन क्रोध उनके नियंत्रण में था, इसलिए वो कमल नयन कहा गया। ऐसे गुस्से में भी आंखें, उनकी सुंदरता वैसी की वैसी थी, सुंदरता भगवान की कम नहीं। इस तरह जब भगवान दिव्य हैं, जबकि जीव प्रभावित हो जाता है। कई बार भक्तों के मन में प्रश्न आता है कि प्रभु जी हम इतने साल से जब कर रहे हैं, अभी तक हमारा क्रोध नियंत्रित नहीं हुआ है, ये अनर्थ ज्ञानी है, वो अनर्थ ज्ञानी है, ये परेशान करता है, वो परेशान करता है। इवन जब मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में था तो देखा था कि एक बहुत जटिल प्रश्न सबके मन में था। इतने साल से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी जब मैनेजमेंट करते हैं तो वो चीजें अफेक्ट कर जाती है। भक्तों के बीच में भी कभी कभी मनमुटाव होता है, लड़ाई होती है। तो वाकई भक्ति काम कर रही है, नहीं कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन हम देखेंगे कि इन सब चीजों से प्रभावित ना होना सिर्फ भगवान के लिए ही संभव है, जीव प्रभावित होते हैं। बल्कि ब्रह्मा जी भी जब क्रिएशन करने लगते हैं, तो ये 11वें स्कंद में आता है कि उस समय ब्रह्मा जी चतुष्कुमार बहुत साधारण प्रश्न पूछते हैं। इंद्रियां हमेशा इंद्रिय विषयों के संपर्क में रहती हैं, उससे हम उसके प्रभाव से क्या हम कभी आजाद हो सकते हैं, और हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं? अभी आप किसी भी भक्त को पकड़ के पूछ लीजिए स्पॉन के, वो आपको वो लंबी सी क्लास देना चालू कर देगा, भले वो व्यासन में ना बैठे। लेकिन ब्रह्मा जी इतने प्रभावित हो जाते हैं, ब्रह्मा जी थोड़ी देर को शांत हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, अरे यार एक प्रश्न का उत्तर मेरे मन में आ क्यों नहीं रहा है। और उस समय वो भगवान को स्मरण करते हैं और हंस अवतार वहां पर आके उसको उत्तर देते हैं।
तो वो इस तरह से अगर मान लीजिए कोई बहुत मैनेजमेंट कर रहा है और बीच में जाके कोई फ्रस्ट्रेशन क्वेश्चन पूछ लेंगे तो दिमाग में नहीं आता है। कारण क्या है कि रजोगुण इतना काम कर रहे हैं। तो उस तरह से जो व्यक्ति का शरीर पूर्ण रूप से घी का बना हुआ है, जो इतने सत्वगुण में है कि वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पद उसको दिया गया है, वो व्यक्ति भी प्रभावित हो जाता है। फिर हम लोग कौन से खेती में, तो हमारे लिए प्रभावित होना उसके लिए स्वभाव है। वो हम देखते हैं कि ये अंतर है जीव में और भगवान। हम देखेंगे ये बहुत जगह एपिसोड में आता है। जब जामवंत और कृष्ण के बीच में युद्ध होता है सामंतक मणि को लेकर, उस समय भी ये प्रसंग आता है कि कृष्ण और जामवंत दोनों के दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। जामवंत थक जाते हैं, कृष्ण थकते नहीं। उससे समझ में आता है कृष्ण भगवान है। जामवंत को समझ में आ जाता है अरे इतने दिन से मेरे साथ युद्ध कर रहे हैं, मेरा शरीर थकान की वजह से टूट गया, इनका टूटा नहीं, ये पक्का हमारे भगवान राम। इस तरह से भगवान भी इंगित कर देते हैं कभी कभी कैसे वो स्पेशल है साधारण जीवों जैसे। मैनाम पार्थार्हसि त्रातुम ब्रह्म बंधुम इमं जहि युवसाव अनागसः सुप्तान अवधीन निसि बालकान। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम ब्रह्म बंधु को छोड़कर दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो भगवान कृष्ण क्या होते हैं कि हे अर्जुन, इस पर बिल्कुल भी दया मत करो। क्यों? क्योंकि इसने दो बड़े बड़े जुर्म किए हैं, अपराध किए हैं। कौन सा अपराध? पहला अपराध उसने ये किया है कि बच्चों को मारा है। बड़े बड़े योद्धा को मारा होता है तो फिर समझ में आता। दूसरा, वो जब सो रहे हैं तो उस समय मारा है। तो इसीलिए ये कौन है? ये ब्रह्म बंधु है, ये ब्राह्मण नहीं है। ये मत सोचो कि ब्राह्मण है इसको छोड़ देते। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्रह्म बंधु का मतलब क्या है? वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है पर उसके अंदर ब्राह्मण के गुण नहीं है। जैसे कि कोई हाई कोर्ट जज का बेटा हो पर हो एक नंबर का निकम्मा, तो ऐसे निकम्मे को हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये हमारे हाई कोर्ट जज जा रहे हैं। उसी तरह से कोई ब्राह्मण है और अंडे फोड़े जा रहा है तो फिर उसको हम ब्राह्मण नहीं कहेंगे, वो एक नंबर का निकम्मा आदमी। तो यहाँ पे वो क्या करता है? यहाँ पे ब्राह्मण की तरह काम नहीं करता है, क्योंकि अगर वो ब्राह्मण होता तो शारीरिक चेतना से इतना ज्यादा प्रभावित नहीं। तो वो व्यक्ति, ये व्यक्ति शारीरिक चेतना से इतना ज्यादा प्रभावित था, उसको लगा कि मेरे पिता, अगर पिता ने देह त्यागी है, पिता की मृत्यु हो गई है, जिस जो भी मृत्यु का कारण है मैं उसको मार के खत्म कर दूंगा। सारी विवेक बुद्धि उसकी खत्म हो गई। उसको समझना चाहिए था कि युद्ध का मतलब ही है कि किसी भी योद्धा की मृत्यु हो सकती है। तो अगर वो एक रैशनल इंटेलिजेंस से सोचता तो समझता कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ द्रोणाचार्य को अनीति से मारा गया। द्रोणाचार्य ने भी तो अभिमन्यु को अनीति से मारा। 6 योद्धाओं ने जो अभिमन्यु को मारा था, उसका प्लान कैसे मारा था? प्लान द्रोणाचार्य नहीं मारा था, बनाया था। वैसे बनाया था कर्ण के कहने पे, ये सब कर्ण का दोष है, जिसको आजकल बड़ा मीडिया में बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। कर्ण ये, कर्ण वो, जैसे बड़ा बहुत बड़ा हीरो है। वो सिर्फ जातिवाद के कारण, किंतु उसका प्लान था। उन्होंने नीतीश मारा था, उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। शारीरिक चेतना से इतना ज्यादा प्रभावित था कि उसने सोचा कि जिसने भी मेरे पिता की हत्या की है उसके पूरे खानदान को नष्ट कर दिया। इसलिए यहाँ पर उसको क्या बोला गया है? ब्रह्म बंधु। वो ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म। युद्ध खत्म होने के बाद उसने इतना गंदा काम।
युद्ध में करता फिर भी बहुत टेक्निकल वर्ड। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम गीतम मार्गम धर्मविद। इसमें अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, नशे में उन्मत्त, पागल, सोया हुआ, डरा हुआ या रथ विहीन हो। न ही वह किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद कीजिए। धर्म के ज्ञाता योद्धा द्वारा कभी ऐसे शत्रु को नहीं मारा जाता जो प्रतिरोध न करे। पुराने समय में धर्म युद्ध के सिद्धांतों के आधार पर लड़े जाते थे, किसी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। यदि शत्रु प्रमत्त हो, सोया हो इत्यादि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, तो उसे कभी भी मारना नहीं चाहिए। धर्म युद्ध के ऐसे कुछ नियम हैं। पूर्व काल में कभी भी स्वार्थी राजनेताओं की सनक के कारण युद्ध की घोषणा नहीं की जाती थी। युद्ध पापों से रहित धार्मिक नियमों के आधार पर लड़े जाते थे। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार की गई हिंसा तथा कथित अहिंसा से कहीं श्रेष्ठतर होती है। हरे कृष्णा प्रभु। और इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे, क्यों, क्या कारण है कि यहाँ पर इसको ब्रह्म बंधु कहा गया है अश्वत्थामा को, और क्यों कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि इसको मत छोड़ो, ये मृत्यु के योग्य है, मृत्यु प्राप्त करने के योग्य है। क्या कारण? क्योंकि कोई भी व्यक्ति कैसा है, केयरलेस। केयरलेस मतलब मत्तम, मतलब वो अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है और आप उस पर हमला कर देते, तो ये उचित नहीं है। ऐसे व्यक्ति को नहीं मानना चाहिए। प्रमत्तम मतलब जिसने मदिरा पान कर रखा है, होश में नहीं है, उसके साथ युद्ध करेंगे तो वैसे भी वो लड़ने के लायक नहीं, उससे नहीं करना चाहिए। उन्मत्तम जो पागल है, पागल से युद्ध करके क्या लाभ? क्योंकि अगर आप उसको पनिश भी करेंगे, उसको दंड भी देंगे, उसको समझ में नहीं आएगा। सुप्तम, कोई सो रहा है, उसका नहीं करना चाहिए, उस पर हमला नहीं करना चाहिए। बालम, बालम अर्थात कोई बालक है, शरीर में उतनी उसकी शक्ति नहीं है, उससे लड़ाई करके क्या फायदा? कोई आप पहलवानी वाला काम नहीं कर रहे। स्त्रियम, स्त्रियों पर हमला नहीं करना चाहिए। जड़म, जड़म मतलब जो मूर्ख है। क्या? प्रपन्नम, प्रपन्नम मतलब जिसने आपके चरणों पर आश्रित कर दिया है कि कृपया करके हमको छोड़ दीजिए, ऐसे व्यक्ति पर क्या नहीं करना चाहिए? हमला नहीं करना चाहिए। फिर उसको हम लोग युद्ध नहीं कहते। लेकिन आजकल आप देखेंगे, खासकर रिसेंट कलयुग आने के बाद, कुछ दुष्ट लोग हैं, वो सबसे पहले ऐसे लोगों पर ही हमला करते हैं। निहत्थे लोगों को मारना, स्त्रियों को मारना, छोटे बच्चों को मारना, वो उनका सबसे मुख्य काम है। और ऐसे बहुत सारे मूर्ख नेता हैं जो उसको बोलते हैं कि ये धर्म युद्ध है। तो आजादी के टाइम पे ऐसा ही हुआ था कि कुछ धर्म के लोगों ने अन्य धर्म के लोगों को मारा था, और खासकर बच्चों को, निहत्थे लोगों को मारा था। और यहाँ के बड़े फेमस नेता थे जिनको कई बार लोग महात्मा कहते हैं, वो बोलने लगे कि ये धर्म युद्ध है, वो लोग अपना धर्म युद्ध कर रहे हैं। तो ऐसे मूर्ख लोग महात्मा कहलाने लायक नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि धर्म क्या होता है। धर्म हम लोग शास्त्रों से सीखते हैं। मनगढ़ंत पॉलिटिकल रीजन से कुछ भी, किसी भी चीज को धर्म बनाना, अधर्म बनाना, ये उचित नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्योंकि अर्जुन के जो पुत्र हैं, सॉरी खासकर द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, वो सब बालक थे और फिर सो रहे थे। उनको मारना उचित नहीं था, बल्कि उसने सिर्फ उनको नहीं मारा था, धृष्टद्युम्न को जो पहले उसने हमला किया, अश्वत्थामा ने पहले उसके सीने पे जोर से किक किया,
पैर से मारा। तो धृष्टद्युम्न कहने लगा कि तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन कम से कम मुझे तलवार लेने का मौका तो दो, मैं एक क्षत्रिय की तरह मरना चाहता हूँ। तो कहने लगे नहीं, तुम क्षत्रिय बनने के योग्य नहीं हो, मैं तुमको ऐसे ही मारूं। तो केयरलेस, वो मत्तम था, मतलब अभी जो सो के उठा था, तैयार नहीं था युद्ध के। उस समय अश्वत्थामा उसको मारा, बल्कि सारे सैनिकों को वैसे ही मारता। तो इसीलिए अब वो मृत्यु के लायक है। कृष्ण अपने रीजंस देते हैं, ऐसे ही नहीं कहते कि इसको मारो। स्वप्राणान या पर प्राण परपुष्णाद ऋणः फलः तद्वदस्तस्य ही श्रेयो यद्दोषात् यात यथा पुमान्। इसका ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसका भी तात्पर्य पढ़िए। जो व्यक्ति क्रूरता तथा निर्लज्जता पूर्वक दूसरों के जीवन की बलि पर पलता है, उसके लिए प्राण का बदला प्राण ही उपयुक्त दंड है। राजनीतिक नैतिकता का तगाजा है कि क्रूर व्यक्ति को नरक जाने से बचाने के लिए उसे प्राण दंड दिया जाए। यदि शासन किसी हत्यारे को प्राण दंड देता है तो अपराधी के लिए यह अच्छा होता है, क्योंकि उसे अगले जन्म में इस हत्या कर्म के लिए फल भोगना ही पड़ेगा। ऐसा प्राण दंड उस हत्यारे के लिए न्यूनतम संभव दंड है, और स्मृति शास्त्रों में कहा गया है कि जिन्हें राजा द्वारा प्राण के बदले प्राण के आधार पर दंडित किया जाता है, वे अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि वे स्वर्गलोक जाने के पात्र भी बन सकते हैं। नागरिक संहिता तथा धार्मिक सिद्धांतों के महान रचनाकार मनु के अनुसार पशु के मारने वाले तक को हत्यारा समझना चाहिए, क्योंकि पशु मांस कभी भी सभ्य मनुष्य का भक्ष्य नहीं होता। सभ्य मनुष्य का मुख्य कर्तव्य तो भगवत धाम वापस जाने के लिए अपने आप को योग्य बनाना है। उनका कहना है कि पशुओं के वध के पीछे पापी गिरोहों का नियत षड्यंत्र रहता है, अतः वे उसी प्रकार दंडनीय है जिस प्रकार की षड्यंत्रकारी गिरोह जो सामूहिक रूप से किसी मनुष्य की हत्या करते हैं। जो पशुवध की आज्ञा देता है, जो पशुवध करता है, जो काटे गए पशुओं को बेचता है, जो पशु मांस पकाता है, और जो ऐसे भक्ष्य का वितरण करता है, और वह भी जो ऐसे पकाए भक्ष्य को खाता है, वे सभी हत्यारे हैं और सभी प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है। चाहे कोई कितनी ही वैज्ञानिक प्रगति क्यों न कर ले, वह जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता। अतः मनमानी करके किसी जीव का वध करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। पशु भक्षकों के लिए शास्त्रों में सीमित पशु यज्ञों की ही अनुमति है, और ऐसी अनुमति भी कसाई घरों के खोलने पर प्रतिबंध लगाने के लिए है, न कि पशुवध को प्रोत्साहित करने के लिए। शास्त्रों में जिस विधि के अंतर्गत पशु यज्ञ की अनुमति दी गई है, वह बलि किए जाने वाले पशुओं तथा पशु भक्षकों दोनों ही के लिए हित में है। यह पशु के हित में यूं है क्योंकि बलि होने वाला पशु वेदी में बलि होते ही मनुष्य योनि प्राप्त कर लेता है, और पशु भक्षक भी स्थूल पापों से बच जाता है। सुनियोजित रूप से चलाए जा रहे कसाईघर ऐसे विभत्स स्थान है जो समाज, राष्ट्र तथा सामान्य जनता के लिए सभी प्रकार के भौतिक अनिष्टों को पनपने के स्थान है। इनके द्वारा दिए जाने वाले मांस का भक्षण करना वही यह स्थूल पाप है। यह भौतिक जगत स्वयं ही चिंताओं से भरा हुआ स्थान है, और उसमें पशुओं के वध को प्रोत्साहित करने से सारा वातावरण युद्ध, महामारी, अकाल तथा अन्य कई अवांछित विपत्तियों से अधिकाधिक दूषित होता जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग परपोर्ट दिया है यहाँ पर, कि यहाँ पर आता है कैसे जो व्यक्ति दूसरे को मार के अपना जीवन यापन करता है उसको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। तो आजकल हम देखते हैं कि कई बार बहुत सारे आतंकवादी हैं, वो सैकड़ों लोगों को मार देते हैं, और फिर कुछ लोग आते हैं बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, तो छोड़ देना चाहिए, ये भी तो मनुष्य है, इनको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। तो प्रभुपाद बताते हैं कैसे ऐसा व्यक्ति को अगर आप मृत्यु दंड देंगे तो अपने पाप से मुक्त हो जाएगा। अगर आप उसको मृत्यु दंड नहीं देंगे तो क्या होगा, अगले जन्म में उसको उससे ज्यादा नरक में दंड भोगना पड़ेगा।
इसलिए राजा जब राजदंड देता है, वो राजा की कृपा है उस मर्डरर के ऊपर, जो हत्यारा है उसके ऊपर वो कृपा है। कैपिटल पनिशमेंट इसलिए गलत नहीं है। तो जो घोर पाप करता है वो मृत्यु दंड के ही लायक होता है। तो दोनों चीजें होती हैं। साधारणतः और लोग जो ऐसे काम करने वाले हैं वो लोग डरते हैं, और जो बाकी में हत्यारा है वो भी कैसा होता है, वो राजदंड के कारण अपने पापों से। और फिर प्रभुपाद खासकर बता रहे हैं जो लोग पशु की हत्या करते हैं, तो जो लोग पशु को मारते हैं सिर्फ वो लोग अपराधी नहीं है, जो उसको बेचते हैं, जो उसको पकाता है, जो पशु हत्या या पकाने इत्यादि में जो सहायक होते हैं, वो सबके सब हत्या के भागी होते हैं। कई बार आप लोग देखेंगे कि कुछ बिजनेसमैन होते हैं, वो खुद बोलेंगे नहीं नहीं हम तो मारवाड़ी परिवार से, हम प्यार लहसुन नहीं खाएंगे, लेकिन फिर आप देखेंगे मारवाड़ी भाषा लिखा हुआ है सामने, सब कुछ उल्टा सीधा पकड़ है। तो फिर उनको अपराध लगता है। ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे हम नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ बिजनेस चला रहे हैं। आपको भी पशु हत्या का उतना ही पाप लगेगा जितना एक हत्या लोग। पलाश प्रभु। हरे कृष्ण ब्रो, दंत प्रणाम। ब्रो जी यहाँ पर जो लिखा है कि जो भी सैक्रिफाइस में जो एनिमल को सैक्रिफाइस किया जाता है उसको फिर उस एनिमल को फिर नेक्स्ट बर्थ में उसको फिर एक अच्छा मतलब ह्यूमन फॉर्म मिल सकता है। तो मैं एक लेक्चर में मतलब इसमें सुना था कि मीन्स देर आर थ्री काइंड ऑफ एनिमल्स ऑफ थ्री गुणास, लाइक काउ इज फॉर सत्वगुण, लाइक लायन इज फॉर रजोगुण, एंड मंकी इज फॉर ये तमोगुण। सो प्रभु यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे कि जो कि मतलब ह्यूमन लोग खाते हैं। हाँ, और मीन्स there are different category of animal which has been sacrificed, like goat is sacrificed. There are places in different places where buffalo is been sacrificed, like there are different. So uh, how means how they are like transform into a different means in human form, in which guna they will like, just a simple query. तो अभी वो लोग अगर ह्यूमन बॉडी मिलेगा तो कौन सा बॉडी मिलेगा उनको? एक्चुअली ह्यूमंस में भी स्पीसीज अलग अलग मोड्स में। तो आप देखें कुछ लोग एबॉरिजिन होते हैं, वो ऐसे परिवारों में उनका जन्म होता है कि पाप करना उनके लिए एक धर्म जैसा बन जाता है। जैसे एक माता जी थी, बाद में वो प्रॉपर्टी डिसाइपल बनी, पर वो बताती हैं कि उनकी सास ने उनके ससुर को खाया था। क्योंकि उनकी कम्युनिटी में क्या था, उनकी कम्युनिटी में वो रूल था कि कोई बूढ़ा होगा उसको हम बूढ़े को ज्यादा दर्द नहीं देना चाहते हैं, तो लोग पत्थर मार मार के उसको मार दिया करते और उसको पका के खा जाते थे। तो जब कोई ऐसी फैमिलीज में पैदा होता है तो पापाचार जो है वो उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है। आप बोलेंगे ये तो अन्याय हुआ उसके साथ। अन्याय नहीं है, जिन लोगों की वैसी प्रवृत्तियां रही हैं, सटल बॉडी वैसा है, उनको ऐसे परिवारों में जन्म, इसलिए ऐसे परिवारों में वो कैसे रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं। जो लोग उस परिवार में कंफर्टेबल नहीं वो छोड़ देंगे उसको। हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर कुछ भक्तों ने बताया, हमने पढ़ा नहीं है, कि उनका नाम पहले हबीबुल्लाह था। तो वो मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन वो परिवार छोड़ देते हैं, बचपन में छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनका रहन सहन खाना पीना उनको पसंद नहीं आ रहा था। और वो कौन? हरिदास ठाकुर है, ब्रह्मा जी के अवतार है। तो इसीलिए इस संसार में भी जब लोगों के परिवारों में जन्म होते हैं मनुष्य जीवन में, तो अलग अलग मोड्स में, कुछ लोग गुडनेस होता है, कुछ पैशन में, कुछ तो प्रभुपाद बताते हैं कि जनरली जो गाय है वो अगले जन्म में ब्राह्मण बनती है, क्योंकि वो सत्वगुण में।
तो शेर चीते इत्यादि हैं वो शायद क्षत्रिय बनते हैं क्योंकि रजोगुण ज्यादा है, और जो बंदर इत्यादि हैं फिर वो शूद्र वगैरह बनते हैं। इस तरह से मनुष्य योनियों में भी कुछ लोग सत्वगुण में होते हैं, कुछ रजोगुण में, कुछ तमोगुण। ठीक है, बस शिवम को So, Ji, we discussing about the capital punishment, that if the king gives capital punishment, so then the person is freed from his but like how much, but the person who is giving the capital punishment, he should actually be a neutral person now. But in today's time, like when we see most of the judges who are of punishment, so they are also not neutral in one sense. They also have their personal inclinations, personal agendas. And then the president, like in the Indian context, the president of India also has a superseding authority, that even if the judge has given the capital punishment, the president of India can pardon it. So, like, how much is the neutrality of the person giving the capital punishment is involved? If the person who is giving capital punishment, he is not neutral per se, so does he get implicated in announcing the capital punishment? देखिए, अगर मान लीजिए आप वाया मीडिया नहीं है, आपको भी क्या होगा, उसका दंड मिलेगा। तो दो चीजें होती है, एक होती है इंटेंट और दूसरा होता है जनरल मिस्टेक। तो जनरल मिस्टेक इवन पहले भी हो सकती थी। जैसे राजा अगर मान लीजिए जजमेंट दे रहा है, इसलिए राजा तो भगवान नहीं है, वो और लोगों की सहायता लिया करता था। महामंत्री हैं, अन्य जो मंत्री वगैरह हैं, फिर बहुत सारे ब्राह्मण बैठे रहते थे जो शास्त्रों में ज्ञाता थे, अलग अलग सेक्शन से ज्ञाता थे। उन सबसे सलाह लेने के बाद में राजा क्या करता था, जजमेंट दिया करता था। लेकिन उसके बावजूद भी गलतियां हो सकती हैं। जैसे मांडूक मुनि के केस में हुआ था, बाकी चोरों को पकड़ा, मांडूक मुनि को भी पकड़ा और उठा के चंगे में फेंक दिया। बाद में राजा को रियलाइज हुआ कि अरे भाई वो तो मांडूक मुनि है, इतने बड़े संत हैं। फिर उनको वो चंगे से उठा के लेके आया। तब तक मांडूक मुनि के साथ बहुत कुछ हो चुका था, तलवार के ऊपर फेंका था, वो बैलेंस कर रहे थे। तब तक एक व्यक्ति, सारी कथाएं कनेक्टेड है, वो जो लेपर था वो एक वैसा से मिल जाता है, वो से टकरा जाता है मांडूक मुनि से, तो वो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, तो बहुत दर्द होता है। और इसलिए बाद में वो यमराज को कर्स भी करता है और फिर यमराज जी बन जाते हैं विदुर जी। तो इस तरह से उस समय भी ऐसा नहीं है, गलतियां नहीं होती थी, पहले भी गलतियां होती हैं। जो भी अथॉरिटेटिव पोजिशन है, इसलिए वैदिक काल में क्या देखा जाता, दोनों चीजें उसके पास होनी चाहिए, मॉरल वैल्यूज और सेकंड चीज है वो है स्किल्स। तो अगर मॉरल वैल्यूज ठीक है, स्किल्स ठीक है, तो फिर ऐसा व्यक्ति ठीक से कोई भी डिसीजन ले सकता है। पर अनफॉर्चुनेटली करंट कंडीशन में क्या होता है, वो दोनों चीजें नहीं देखी जाती, सिर्फ स्किल्स देखी जाती। अगर कोई स्किल्ड है तो व्यक्ति अपने पोजीशन में पहुंच जाता है, भले उसके अंदर मॉरल वैल्यूज हों। और क्योंकि ये सारी चीजें टॉपसीटर भी है, वो व्यक्ति जो जजमेंट कर रहा है, अगर उसकी इंटेंट ठीक नहीं है या फिर वो उस पोजीशन में स्किल की बेसिस पे नहीं आया, ब्राइब करके ये करके वो करके उसको पहुंच गया, उसके लायक नहीं है, तो फिर उस केस में उसको पाप लगेगा, पाप लगेगा। लेकिन कई बार वो चीजें बहुत क्लियर होती है, सबको मालूम है कि ये आतंकवादी है या अभी 100 लोगों को मार के आया है, उस केस में तो फिर बेहिचक कोई भी व्यक्ति मृत्यु नहीं दे सकता, नो डाउट। So certain things are like confusing, but certain things are very clear. Okay, so you, Mataji, had similar question, same question. Yes, Prabhu, it got answered. Thanks. हाँ, नेहा माताजी क्वेश्चन। प्रभु जी, मोदी जैसे हैं, ही इज लीडिंग अ लाइफ फुल ऑफ प्रिंसिपल्स, लेकिन हमारे देश में इतने सारे स्लॉटर हाउसेस हैं, ब्रॉथल्स हैं,
बहुत कुछ गलत भी सब कुछ हो रहा है, तो उसका, क्योंकि ही इज हेडिंग द स्टेट, तो उसका फल उनको मिलेगा क्या? सो करंट कॉन्टेक्स्ट में क्या है, करंट कॉन्टेक्स्ट में वो मिलेगा नहीं मिलेगा, तो पाप और पुण्य दोनों का उनको मिलेगा। तो वॉट एवर गुड वर्क ही इज डूइंग, जो अच्छे काम वो कर रहे हैं, जैसे राम मंदिर, उसमें हेल्प किया, इसमें हेल्प किया, तो उसका भी फल मिलेगा। तो पॉइंट यही है कि आपकी, इसलिए जो बड़ी पोजीशन में आते हैं वो लोग रिस्क लेते हैं। पहले जमाने में लोग कई बार बड़ी पोजीशन ऑक्युपाई नहीं करना चाहते थे, आजकल उल्टा होता है। आजकल लड़ाई करके लोग ऊपर पोजीशन में पहुंचना चाहते हैं, पहले जमाने में नहीं करना चाहते थे। और तो कई बार आप देखेंगे प्रियव्रत महाराज कह रहे हैं नहीं हम राज्य नहीं करेंगे। राम भरत में आपस में वो चल रहा है कि नहीं आप राजा बनो, आप राजा बनो। आजकल उल्टा होता है, हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। और उसका रीजन ये है कि उनको मालूम है कि ये जो ऊपर की पोजीशन है इसकी पोजीशन, उस पोजीशन में अगर आप अधर्म को सपोर्ट कर रहे हैं उसका परिणाम मिलेगा, धर्म का सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका परिणाम मिलेगा। तो अगर आप कहीं स्लॉटर हाउस चल रहा है उसका मिलेगा, लेकिन अगर आपने स्लॉटर हाउस बंद की है, आपकी वो इंटेंट है, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। तो सिर्फ टाइम प्लस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जो चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है और वो कर रहा है, तो सडनली पाप पुण्य एक तरफ है, बट मेन चीज है कि भगवान उसके साथ। तो जो मीड ईटिंग को प्रोत्साहित करेगा वो पाप का भागी बनेगा। आप देखिए बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स में लोग हैं जहाँ जैसी उनकी आती है, गवर्नमेंट आती है, गाय के कसाई खाने वो चालू कर देते हैं, कसाई खानों को प्रोत्साहित कर देते हैं। तो उनकी इंटेंट ही खराब है। जब आपके प्रिंसिपल ही खराब है तो ऑब्वियसली आपको उसका पाप मिलेगा। लेकिन कुछ लोग आते हैं जो पहले से इतना कचरा चल रहा है, उस कचरे को कम करने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज अ गुड इंटेंट। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति एक सत्य के मार्ग पर निकला है, धर्म के मार्ग पर निकला है, सच ए पर्सन नेवर मीट्स डिस्ट्रक्शन, वो उसका कभी नाश नहीं। तो इंटेंट एक चीज है, प्रैक्टिकलिटी दूसरी चीज है। अगर प्रैक्टिकली कोई व्यक्ति धीमे धीमे करके उसको कम करने की कोशिश कर रहा है तो दैट विल बेनिफिट। बट सडनली जो भी अथॉरिटी पोजीशन पे है, नो डाउट उसी पर रिस्क, उसका रिस्क बहुत बड़ा होगा। इसलिए जो भी ये पोजीशन है बहुत जिम्मेदारी वाली पोजीशन है। ठीक है, तो मेन थिंग इज इट्स नॉट दिस कंडीशन, इट्स लाइक कौन रिड्यूस कर रहा है कौन इंक्रीज कर रहा है। सो दैट इज ऑल्सो, क्योंकि एक चीज है कि रियलिटी ये है कि जो करंट हमारे प्रधानमंत्री हैं या प्रेसिडेंट हैं वो एग्जैक्टली राजा नहीं। रियली स्पीकिंग जो सैलरी लेता है सैलरीड क्लास को शूद्र कहते हैं। तो रियली स्पीकिंग करंट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि वो भी सैलरी ड्राइव करते हैं, उनको हम लोग राजा की पोजीशन पे नहीं रह सकते। और क्योंकि वो राजा की पोजीशन पे नहीं है तो उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ज्यादा नहीं, तो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई राजा है, राजा मतलब वो जो रूल बनाएगा वो सब लोग फॉलो करेंगे। उस केस में अगर उसकी किंगडम में कुछ गलत हो रहा है उसके गलत इंस्ट्रक्शन की वजह से, या फिर उसके इंस्ट्रक्शन के विरुद्ध कुछ हो रहा है, वो एक्शन नहीं ले रहा है, तो वो जिम्मेदार रहेगा। बट करंट कंडीशन में क्या कि इवन जो प्रधानमंत्री है वो राजा नहीं, इज नॉट ए किंग। और क्योंकि वो राजा नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा नहीं। इसलिए आप देखें श्रीमद् भागवतम में एक लेवल तक लीलें बताई जाती है, इस राजा ने इसको मारा, कलयुग में ये फिर आगे गया, फिर वो गया, फिर वो गया, 12 घंटों में आता है। फिर एक लिमिट के बाद आता है इसके बाद कोई राजा नहीं हुआ। बोले अरे ऐसा कैसे राजा नहीं हुए, डेमोक्रेसी क्या, डेमोक्रेसी में कोई राजा नहीं। जब कोरोना काल चल रहा था तो इन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को कुछ चीजें वो चाहते थे कि लोग फॉलो करें, पर स्टेट गवर्नमेंट्स फॉलो नहीं कर रहे थे। तो वो भी हाथ जोड़ के आग्रह कर रहे थे कि ये
इंस्ट्रक्शन, ये चीजों को फॉलो करिए, तो फिर ऐसे व्यक्ति को आप राजा नहीं कह सकते, तो उस पावर ही नहीं है ज्यादा चीजों का इन्फ्लुएंस देखो। एक वर्ष और कर सकते। प्रतिसुतं च भवता पंचालय संवतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनी पुत्रः। पढ़िए सर। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों करोगे। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। फिर वो कहते हैं सबसे जब मुख्य चीजें हुई, तुम क्षत्रिय हो, मैंने सुना है कि तुमने एक प्रण लिया है कि द्रौपदी के पुत्रों का हत्यारा जो अश्वत्थामा है, तुम उसको दंडित करोगे, बल्कि उसका शीश, उसका सर लेके आओगे। इसलिए इस व्यक्ति को दंडित करना चाहिए। तदसो वध्यताम पाप आततायात्म बंधुः भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपाशना। पढ़िए इसका। कृष्णा, यह आदमी तुम्हारे कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वधकर्ता आतताई है। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है। वह अपने कुल की राख कुलांगार है। तुम तत्काल इसका वध कर दो। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, वो व्यक्ति है जिसने सारे कुल को ही समाप्त कर दिया है, कैसे? अपने पापों के द्वारा। और ये तो भाई दुर्योधन को भी संतुष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि दुर्योधन ने मृत्यु के समय इसको बना दिया था सेनापति। लेकिन जब ये सोचता है कि अरे मैंने सोते हुए पांडवों का नाश किया है, और उनका सर लेके आता है दुर्योधन के पास, दुर्योधन कहता है कि पांडवों को मारना इतना आसान नहीं है, मैंने खुद देखा। चेक करने के लिए दुर्योधन अब उनका सर को स्पर्श करता है। जब सर स्पर्श करता है, सर फट जाता है। वो कहते हैं कि नहीं मूर्ख, तुमने पांडवों का नाश नहीं किया है, क्योंकि पांडवों के सर तो लोहे की तरह से सख्त है एकदम। ये सबके सब उनके पुत्रों के सर है। तो कम से कम मैं मर गया, मेरे बच्चे नहीं थे, या फिर मेरा पूरा खानदान नष्ट हो गया, मेरा और पुत्र पौत्र सब मारे गए, तो कम से कम जो पांडव के पुत्र थे वो तो हमारे फैमिली लिनेज को आगे लेके जाते। तुमने तो कुल के सबको समाप्त कर दिया, तो वो भी उसको धिक्कारता है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं यार ये तो दुर्योधन को भी प्रसन्न नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति मृत्यु के योग्य है, अर्जुन उसको छोड़ो। इस तरह से कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं अश्वत्थामा का वध करने। श्लोक नंबर 40 से नेक्स्ट नंबर। ठीक है एवं प्रभु, नेक्स्ट वीक वी विल हैव अ श्लोका टेस्ट। Most likely to arrange. Most likely next week we will do the closed book exam. सारे भक्तों से अनुरोध है, श्लोका याद करके रखिए। आप लोगों की वजह से मैंने वो श्लोका वगैरह डाले थे, वो पूरे वीडियोस, उसमें बोले थे प्रभु जी हम उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने अपना पाठ कर दिया। अभी आप लोग अपना पाठ करना है, याद करने में। श्लोका is में श्लोका तो 5 मई को है ना? 5th May प्रभु। यस, ओके। नेक्स्ट इज नॉट 5th। Shloka is on 5th. Next week we have to submit the open book answers. Yeah. Yes प्रभु, yes, please share the email ID, we'll do so. I will create an email ID today and share it. And next week probably we will arrange the closed book exam also. Most likely you can expect that we will have the